पर हो क्या गया है, कि आप सब तो साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। आपको लगता है ये स्क्रिप्चर्स सब बहुत पुराने हैं, इररेलेवेंट हैं, इसमें क्या मिलेगा? वी आर मॉडर्न जनरेशन, वी हैव साइंटिफिक माइंड, वी बिलीव इन द थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. What would these scriptures tell us? But you'd be shocked and surprised to know that the stalwarts from the field of science and technology, the greatest of the great mind, when confronted with this question that do you believe in these ancient scriptures, do you believe in God? And you know what the answer has been? Almost all of them in unison had spoken that yes, we do. They never doubted, they never had any lack of belief. And do you know why? Once it was asked to Einstein that do you believe in God? He said, yes, I do. The journalist who was taking the interview did not expect this answer, so he was shocked and he said, do you, sir? He said, yes, of course I do. And he said, may I ask why? He said, because I still could not decipher God. I'm yet to find out, I'm yet to reach to that level. And something which I yet to decipher, how could I disbelieve it? I'm a scientist. My first step to achieve is to believe that yes, this is possible. That is why I take step towards that. When Thomas Alva Edison created bulb, he had the belief that I can do it. He kept on failing for 999 times, but at the 1000th time he created the bulb. But had he had not the belief that I cannot do this, could have he created a bulb? So as a scientist, first you have to have that belief that yes, it is possible and I can do it. And you have not to get dejected by the defeats or by the unsuccess, because success comes after a lot of failure. When after 999 failures, the bulb was finally invented by Thomas Alva Edison, he was questioned, sir, where did you get this persistence from that you kept on trying after 999 failures? And pat came the reply. Edison replied, who said that I failed 999 times? I did not. See again, the perspective, the way to look things, and that makes ordinary extraordinary. That makes you great, the way you look things. What was the reply of Edison? He said, sorry sir, you considered it failure. I take it that today I am enlightened by the fact that these 999 times, those methods, one cannot create a bulb. So I know that these 999 times are not the right methods, but it's not a failure, it's a knowledge. So it's just the perspective. और हम 999 तो छोड़ो, 9 अटेम्प्ट्स में ही डिजेक्शन फील करने लगते, स्ट्रेस फील करने लगते, अरे ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं पॉसिबल है,
ये कैसे होगा? ये इसलिए होता है क्योंकि आप बिलीव नहीं कर रहे कि ये पॉसिबल है। आप सब ने अपने जीवन में ना भी देखा हो तो शेर का नाम तो सुना है, फोटो तो देखी होगी। ये तो अपने स्कूल बुक की प्राइमरी बुक्स में पढ़ा होगा कि लायन इज द किंग ऑफ जंगल। डू यू ऑल अग्री? अब मुझे बताइए, क्या ये लायन पूरे जंगल का सबसे फुर्तीला प्राणी है? नहीं। कौन है? चीता। क्या लायन सबसे ताकतवर प्राणी है? नहीं। कौन है? हाथी। ताकत में हाथी की बराबरी नहीं है किसी से, कोई और जानवर उसके बराबर नहीं। क्या ये लायन सबसे चालाक क्लेवर प्राणी है? नहीं। कौन है? जैकॉल, फॉक्स। ठीक है। क्या ये लायन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदकते हुए, कूदते हुए यहां वहां लटक सकता है? नहीं। कौन कर सकता है? बंदर। ठीक है। जिसको भगवान ने ये कोई भी गुण नहीं दिए, ना तो वो सबसे ताकतवर, ना वो सबसे चालाक, ना वो सबसे फुर्तीला, ना उसमें इस पेड़ से उस पेड़ पे कूद फांद के खाने का गुण, पर देखो वो किंग है। जब वो चलता है ना जंगल में, तो सबसे ताकतवर हाथी भी किनारे, सबसे फुर्तीला चीता भी किनारे, बंदर का तो कहना ही नहीं, वो तो पेड़ से उतरता ही नहीं। तो इसको किंग कौन बना रहा है? एटीट्यूड, दैट कॉन्फिडेंस, दैट बिलीफ दैट आई एम द किंग. I may not have been bestowed the best of the qualities by God, but that, who cares? I'm the king. And I'll change the course of the entire jungle, so it makes lion a king. Lion never makes excuses. He never tells you explanation. मैं क्या करता, मैं तो पेड़ पे कूद नहीं पाता, मैं तो चालाक भी नहीं हूं, ऐसे तो नहीं कहता ना। ये आपका पर्सपेक्टिव है कि सबसे ताकतवर होते हुए भी आप एक्सक्यूज दे सकते हैं, सबसे चालाक होते हुए भी आप एक्सक्यूज दे सकते हैं, और कोई गुण ना होते हुए भी आप किंग हो सकते हैं। ये फर्क तब होता है जब आपके अंदर एक बिलीफ होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता। और किस चीज का स्ट्रेस? आपकी जनरेशन जिस ऑडिटोरियम में बैठी है, ये एयर कंडीशनड है। जब हम पढ़ते थे तो हमारे ऑडिटोरियम्स में एसी नहीं होता था। ऐसे ही कोई स्पीकर आता था तो हम पसीना पहुंच पहुंच के सुनते थे। मान सकता हूं तब हमें स्ट्रेस हो सकता था,
अरे मर गए, कहाँ पसीने में बैठा दिया। आपको काय का स्ट्रेस, एयर कंडीशन में बैठे। हमारे समय में बुक्स लाइब्रेरी में बैठ के ढूंढ ढूंढ के एक एक चीजों को निकालना पड़ता था। आपके पास कंप्यूटर है, यू कैन सर्च ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन। फिर भी स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस है? अगर आप अपना पर्सपेक्टिव बदलें, अरे तो बहुत इजी है। एयर कंडीशन रूम में बैठ के स्क्रीन के सामने कीबोर्ड पर थोड़ा सर्च करना है, माउस को इधर उधर हिलाना है, कौन सी बड़ी बात है। सड़क पर गड्ढा खोदता हुआ मजदूर जो पसीने में धूप में काम कर रहा है, उससे कंपेयर कीजिए कितना इजी है। कौन सा स्ट्रेस? Or discipline is another factor which you have to keep in mind to avoid stress. What happens is that we choose our schedule in such a way that the entire day becomes stressful. हमारा शेड्यूल ही इतना एरेटिक होता है। अब मुझे, I cannot generalize, but what I have been told and I found that today's generation prefer to study at night. Am I right in my information? अब बताओ, रात जब सोने के लिए है तो आपको पढ़ने का मन हो रहा है, और दिन जब सारी एक्टिविटीज के लिए है तो आपको सोने का मन हो रहा है। When you are going against the nature is going against you. स्ट्रेस हो रहा है। जितना प्राकृतिक जीवन जिएंगे उतना प्रसन्न जीवन जिएंगे। हमारे स्क्रिप्चर्स टाइम को भी जोन्स में डिवाइड करते हैं। वेद की तरह 6 वेदांग हैं और 6 में से एक वेदांग है ज्योतिष। ज्योतिष का नाम तो आपने सबने सुना होगा, पर वो एक स्क्रिप्चर है, शायद आप नहीं जानते होंगे। एंड इट्स अ वेरी वेरी साइंटिफिक स्क्रिप्चर। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, दिस ज्योतिष वेदांग is one of the subject on which NASA is researching. So it's not some kind of illusory scripture. Because जितने ग्रह उपग्रह स्पेस साइंस में आज रिसर्च हो रहे हैं वो सब ज्योतिष में प्रेस्क्राइब्ड है। तो मैं बता रहा था कि ज्योतिष डिवाइड्स टाइम इनटू जोन। एंड डू यू नो, according to this Vedanga called Jyotish, what is prescribed as the best time when the human brain functions at its best
You're right. So that means you know everything. बताने जैसा कुछ नहीं है, सब पता है. हम तो बैठे हैं आपको सुनने के लिए. चलो आओ, बोल लो, मन पूरा कर लो, हमें पता है, पर हम करते नहीं है. अब क्यों नहीं करते वो आपको पता, वो भी मुझे नहीं पता. पता है आपको. और क्या आपको ये भी पता है कि वो जो आप 4 और 5 AM का टाइम बता रहे हैं उसको कहते क्या है? ब्रह्म मुहूर्त. अच्छा, सब पता. यहां तो मैं ही बुद्धू बन गया हूं. सब पता है, क्या बताऊं आपको.